S. Chan presents educational video lectures as per the UGC curriculum. Absolutely free. Difficult science concepts made easy. Study anywhere, anytime. So we have seen about some of the unique features of plant reproduction. We talked about pollination earlier. हमने pollination की बात की और pollination के लिए adaptations की बात की, लेकिन अब हम बात करेंगे embryo के specific differences में. So you already know that what embryo is and how it is formed, all these things you know. But are we clear about the distinctions between monocot embryos and dicot embryos? What are the specific differences? If you are not given a seed, अगर आपको monocot और dicot seed ना देकर आपको केवल embryo दे दिया जाए, will you be able to find out the difference? क्या आप तब difference बता पाएंगे? So that is what is the agenda for this video. Welcome to S. Chan Academy. My name is Aditya and we are looking at semester 3 botany जिसमें हम बात कर रहे हैं plant developmental biology की और plant embryology की. इससे पहले कि हम आगे चलें, let me remind you about a recommendation of the book. You can refer these books of S. Chan Publishing in case you want to learn more details. अगर आप और ज़्यादा डिटेल में इन टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं तो इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं, और अगर आपके पास इन बुक्स की हार्ड कॉपीज़ नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक की मदद से आप ई बुक को एक्सेस भी कर सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. अपना डिस्कशन शुरू करते हैं ऑन मोनोकॉट एंड डाइकॉट एम्ब्रियोज. So we already know that what monocot is and what dicot is. We have been talking long about these things since taxonomy of plants, and then we also talked about this in the plant developmental biology in some of the previous lectures. And now we are very clear that monocot will have one cotyledon and dicots will have two cotyledons. Like if you compare a maize or a corn seed with that of the peanut, अगर आप एक मक्का के दाने को, एक कॉर्न के दाने को, आप सीड को आप अगर मूंगफली के सीड से कंपेयर करेंगे, सो यू विल बी वेरी easily able to distinguish or determinate whether this one is monocot or dicot. But when you break open those seeds, जब आप इन सीड्स को ब्रेक ओपन करते हैं, उनको निकालते हैं, तो मोनोकॉट सीड में एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है दैट इज़ एंडोस्पर्म, और उसका एक छोटा सा पार्ट वहाँ पर एम्ब्रियो होता है, वो एक किनारे पर होता है. जबकि डाइकॉट में जो एम्ब्रियो है वो दोनों कॉटिलिडन्स के बीच में होता है. सो हाउ डू these embryos which are present inside monocot or dicot differ from each other? Before looking at differences, let's first talk quickly about similarities. पहले हम बात करते हैं कि कौन सी कॉमन चीज़ें होती हैं मोनोकॉट और डाइकॉट के एम्ब्रियोज में. सो basic similarities among monocot and dicot, they include that both of them are the rudimentary stages of plant development. यानी कि जो आने वाले प्लांट हैं, फ्यूचर में जो प्लांट बनेंगे, उन प्लांट्स की rudimentary stages होती हैं दोनों ही एम्ब्रियोज, चाहे वो मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो, और दे आर प्रेजेंट इनसाइड एम्ब्रियो सैक. कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ये दोनों के बीच में कॉमन बात है. दोनों ही एम्ब्रियो, उसमें कॉटिलिडन्स होते हैं, प्राइमरी एक्सिस होती है, रूडिमेंट्री शूट और रूट होते हैं जिसे हम रेडिकल और प्लूम्यूल कहते हैं. सो देयर इज नो सच डिफरेंस इन द टाइप ऑफ फीचर्स और कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो. दोनों ही एम्ब्रियोज में दोनों चीज़ें मिलती हैं. देन अपॉन जर्मिनेशन, व्हेन मोनोकॉट और डाइकॉट व्हेन दे जर्मिनेट, they both develop into new individual or a plant, and the way in which they develop is almost similar. Radical will have a geotropism, positive geotropism, and it will move towards the ground, नीचे की तरफ move करता है, and the plumule that will move anti-geotropically or phototropically, वो sun की तरफ move करेगा and it will give rise to the first leaves. So the pattern in which they develop is almost similar. They have the same definition and they also have basic components. Now coming to the differences, कहाँ difference आ जाते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच में, उनकी बात करते हैं हम. तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे इनके मेजर डिफरेंस से, जो कि इनकी डेफिनेशन में ही एग्जिस्ट करता है. The main difference between monocot and dicot is that monocot contain a single cotyledon in the embryo, whereas dicot contains two cotyledons. And by now I think you are very clear about what cotyledon is. अब तक आप cotyledon के बारे में जान चुके हैं. So
if you look at maize, you will find that there is one single cotyledon and embryo is somewhere present in a corner. And if you look at a pea plant or pea seed or a groundnut seed, you will find that there are two large cotyledons and embryo is fitted somewhere between them. तो ये जो लीफी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये जो सॉलिड आई मीन 3 डायमेंशनल लीफी स्ट्रक्चर्स विच कंटेन अ लॉट ऑफ स्टार्च इन देम, इनमें स्टोर्ड फूड होता है, दे आर कॉल्ड एज कॉटिलिडन्स. तो यहाँ पर बेसिक अपीयरेंस में एक सिंपल सा डिफरेंस है. और क्या डिफरेंसेस हैं उनके बारे में बात करते हैं. स्पेसिफिकली इफ वी टॉक अबाउट मोनोकॉट्स, अगर हम मोनोकॉट्स की बात करें, then the monocot embryos, they occur inside the seed and they contain one embryonic leaf which is analogous to cotyledon, जिसको हम cotyledon भी कह सकते हैं. The cotyledon of monocot is narrow and long. ये साइज में मतलब लेंथ में थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन ये इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा नहीं होती है. On the other hand, if you look at the cotyledons of dicots, they will be much broader and sometimes almost round in shape. And it occurs at the tip of primary axis. जो एम्ब्रियो होता है उसमें प्राइमरी एक्सिस की टिप पर ये कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है. The plumule or the rudimentary shoot, plumule will make a future shoot, so that is present at the lateral side of the primary axis. ये primary axis की lateral side पे होता है. A large endosperm is present. तो ये एक खास बात है जो हम कई बार जिसके बारे में बात कर चुके हैं अपने पहले वीडियोज़ में भी, कि मोनोकॉट के अंदर एंडोस्पर्म की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. डाइकॉट में हम अक्सर ये कहते हैं कि डाइकॉट में एंडोस्पर्म नहीं होता है, लेकिन जैसा कि आप जानते होंगे कि जो सेपोडिला है, चीकू का जो फ्रूट है, उसके सीड में वो डाइकॉट होने के बावजूद भी उसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है. सो इट्स नॉट अ यूनिवर्सल फैक्ट दैट एवरी मोनोकॉट विल ओनली हैव एंडोस्पर्म एंड डाइकॉट आर नॉट गोइंग टू हैव दैट, बट येस, अ फ्यू डाइकॉट्स कैन ऑल्सो हैव एंडोस्पर्म इन देम. Now looking at the development of monocot, although the basic development of monocot seed, we have also seen this picture in one of the previous videos as well. हमने एक पुराने पिछले वीडियो में भी हमने इस पिक्चर को देखा है जहां हमने एम्ब्रियो फॉर्मेशन की बात की थी. So we know that every embryonic process of formation of a new plant or a seed that begins with a zygote. Zygote से ही process शुरू होता है, and how this zygote will be formed, you know very well. One of the pollen grain cell or a pollen grain nucleus will encounter or interact with egg cell which is matured and surrounded by two synergids. ये उनके साथ fuse होता है और फिर zygote बनता है, which will be having 2n number of chromosomes or it will be diploid in nature. Now gradually this will start dividing through a simple process called cleavage. Let me tell you that cleavage is slightly different than simple mitotic division, because in cleavage cells do not increase in volume so much between successive divisions. But in case of mitosis, the next division will only happen if the nucleocytoplasmic index or the ratio of the volume has become appropriate. जब वो रेशियो अप्रोप्रिएट हो गया तभी अगला डिवीजन होता है माइटोसिस के टाइम पर. यानी कि हर माइटोटिक डिवीजन के बीच में एक प्रोमिनेंट ग्रोथ फेज ज़रूर होता है. सेल पहले साइज और वॉल्यूम में बढ़ती है और फिर डिवीजन होता है, दैट इज माइटोसिस. बट हियर ऑल्सो माइटोसिस इज हैपनिंग, लेकिन इसको कहते हैं हम क्लीवेज हैं. तो क्लीवेज कैसे अलग है? क्लीवेज में सक्सेसिव डिविजन्स के बीच में कई बार ग्रोथ के लिए टाइम नहीं होता है या ग्रोथ नहीं होती है. So if there are a number of cleavage divisions that are happening in embryo, it is not necessary that overall volume will become multiplied by several times. ये ज़रूरी नहीं है कि उस क्लीवेज के बाद अगर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 सेल्स बन गई हैं तो हर बार उसका वॉल्यूम भी उतना ही डिवाइड हो रहा हो. दैट्स द हॉलमार्क ऑफ क्लीवेज. सो इनिशियली वन जाइगोट विल डिवाइड इनटू 2 cells, where one cell will be called as basal cell and another cell will be called as terminal cell. एक basal और एक terminal cell कहलाएगी. Gradually these cells further divide. ये जो basal cell है, this enlarges and this hosts some of the vacuoles inside this, so that finally becomes vesicular cell, and the lower cell that keeps on dividing. एक सेल जो है वो लगातार डिवाइड होती रहती है. यू कैन सी फर्स्ट देर आर वर्टिकल डिविजन्स, देन देर आर ऑल्सो लेटरल डिविजन्स, फिर लेटरल डिविजन भी हो रहे हैं. तो आफ्टर सक्सेसिव डिविजन्स यू विल बी एबल टू सी दैट अ लॉन्ग सस्पेंसर इज बीइंग डेवलप्ड. एक सस्पेंसर डेवलप हो गया है
Vesicular cell will still remain as such. It's not dividing that much. It is providing a support for binding of rest of the cells. But you can see here the remaining cells or terminal cell has divided so many times. ये कई बार डिवाइड हो गई है and it made a mass of cells. Eventually इससे एक mass of cells बन गया जिसमें वेसिकुलर सेल से जो सेल्स अटैच हो रही है उसे हम सस्पेंसर सेल्स कहते हैं. उसके बाद की जो सेल्स हैं दे मेक रेडिकल. रेडिकल मीन्स द पार्ट ऑफ सीड विच विल इन फ्यूचर मेक रूट्स. एंड इन द लोअर पार्ट यू स्टार्ट सीइंग अ प्रिमिटिव कॉटिलिडन. आप यहाँ पर एक प्रिमिटिव कॉटिलिडन देख सकते हैं जो कि बन रहा है. ओनली सिंगल कॉटिलिडन विल बी फॉर्म्ड. ऑन द अदर हैंड व्हाट विल डिफर इन डाइकॉट्स, the difference in dicot will be there will be two parallel processes. Two such cotyledons will be formed attached to the suspensor and radicle. So we will see about that in a while. थोड़ी देर में हम dicot के बारे में भी देखेंगे, dicot का development भी देखेंगे. But let's talk about quick points on dicot seed and embryo. Dicot embryo के बारे में हम कुछ quick points की बात करते हैं. Dicot embryo is a rudimentary stage plant that is present inside the seed. एक डाइकॉट प्लांट का रूडिमेंट्री स्टेज है, उसका मिनिएचर वर्जन है जो कि सीड के अंदर प्रेजेंट है. इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉटिलिडन्स और वो ब्रॉड होते हैं. अनलाइक मोनोकॉट्स दे आर नॉट वेरी नैरो एंड लॉन्ग, रादर दे आर ब्रॉड एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर सर्कुलर और स्फेरिकल इन शेप. The apical bud is present at the tip of primary axis. Apical bud यहाँ पर primary axis की टिप पर होती है, while the root tip is present at the base of axis. Unlike the monocots, the embryonic leaves do not resemble the true leaves. This is yet another differentiating feature. यहाँ पर जो cotyledons होते हैं वो सारे प्लांट्स में लगभग एक जैसे होते हैं. आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा शायद, जब आप प्लांट्स उगते हुए देखते हो, घर में कभी सीड्स होते हैं उनको डाल देते हो अगर फ्लावर पॉट में, तो जितने भी डाइकॉट प्लांट हैं आप देखोगे कि जो उनकी पहली लीफ आती हैं वो दो लीफ एक जैसी होती है हमेशा ही लगभग सारे प्लांट्स में. कुछ इस तरह की ब्रॉड लीव्स आएंगी किसी भी प्लांट में, और उसके बाद जब ये प्लांट ग्रो होता है तो हो सकता है कि उनकी प्लांट किसी की लीफ किसी तरह की हो, किसी की लीफ किसी तरह की हो. तो ये जो नेक्स्ट लीव्स होती हैं दे डिफर, बट दीज फर्स्ट लीव्स और कॉटिलिडन्स विच इमर्ज्ड आउट एट द जर्मिनेशन दे मे नॉट बी सेम और दे मे नॉट रिजेंबल देयर नेचुरली अकरिंग लीव्स. बट इट इज़ नॉट सो इन केस ऑफ मोनोकॉट्स. मोनोकॉट्स में ऐसा नहीं है. अगर ग्रास उगती है, घास उगती है, तो कई बार ऐसा होता है कि उसकी जो ओरिजिनल लीव्स हैं उसी तरह की उसके कॉटिलिडन्स भी होते हैं. सो दैट्स येट अनदर डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एम्ब्रियोज एंड डाइकॉट एम्ब्रियोज. सो वी विल लुक एट द डाइकॉट एम्ब्रियो डेवलपमेंट. डाइकॉट के एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात करेंगे और हम ये भी देखेंगे कुछ की पॉइंट्स जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं उनको नटशेल में देखने की कोशिश करेंगे. बट वी विल डू दैट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. Welcome to S. Chand Academy. Myself Dr. Mamta Sethi, and I am here to explain you the various concepts related to the states of matter and chemical kinetics. So stay connected, like, subscribe and share, and do not forget to press the bell icon. Welcome back to S. Chand Academy. We were looking at the major differences between dicot and monocot embryos. मोनोकॉट और डाइकॉट के एम्ब्रियोज के डिफरेंसेस के बारे में हम बात कर रहे थे और हमने कुछ बेसिक फीचर्स देखे. मोनोकॉट का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की भी हमने बात की. आइए अब देखते हैं डाइकॉट के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या होता है. सो वेरी सिमिलर टू मोनोकॉट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जैसे कि मोनोकॉट का डेवलपमेंट होता है लगभग वैसे ही आप यहाँ देख सकते हैं कि zygote divides into two cells. One is called as basal cell, another is called as terminal cell, and this basal cell will remain in its original form except for the fact that it will start accumulating vacuoles in it. इसमें vacuole accumulate होगा और gradually वो vacuole एक contractile vacuole का form ले लेगा. So this cell will remain almost similar. It can increase in size and it will gradually lose its cytoplasm, but most of the division of the cell will take place in terminal cell part. ये जो terminal cell है देखिए, एक से दो, दो से फिर और न्यूक्लियस डिवाइड होंगे, फिर ये नीचे वाला पहले दो वर्टिकल डिविजन्स होंगे, फिर लेटरल डिविजन्स होंगे, फिर आप देखेंगे कि इस तरह डिवीजन कंटिन्यू रहेगा और कंटिन्यू होने के बाद
जब बहुत सारी सेल्स हो जाती हैं देन इट ऑल्सो मेक्स अ सस्पेंसर लाइक दैट ऑफ द मोनोकॉट। जैसे मोनोकॉट में एक सस्पेंसर का फॉर्मेशन हुआ था, ऐसे ही डाइकॉट में भी सस्पेंसर का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस कीप्स ऑन ग्रोइंग, सेल्स डिवाइड होती रहती हैं, इसकी लेंथ बढ़ती रहती है और साथ ही साथ जो लोअर पार्ट है वो हॉरिजॉन्टली डिवाइड होता रहेगा एंड दैट विल मेक अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर। एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है विच विल इन फ्यूचर दैट विल टर्न इनटू अ कॉटिलिडन। यही चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर कॉटिलिडन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यू कैन सी हियर, आप यहाँ देख सकते हैं कि दिस इज द लोअर पार्ट। So the lower part of the embryo will be later on developing cotyledons, and this suspensor part will be attaching that part to the embryo sac, whereas one of the cell, ये वाली जो cell है, this will still be attached to the ovule. So ये पूरा embryo sac है, इस embryo sac के अंदर ये सारी चीज़ें attached हैं। आप कह सकते हैं this is ovule, ये ovule है जो आगे चलकर क्या बनेगा, seed बनेगा। अब इस सीड के अंदर ये एम्ब्रियो है, ये छोटा सा पार्ट जो है ये एम्ब्रियो है। बाकी जो आप देख रहे हैं दैट विल मैच्योर इनटू आई मीन न्यूसेलस, सीड कोट, बाकी चीज़ें बन जाएंगी। तो ये इतना पार्ट जो आप देख रहे हैं ये एम्ब्रियो है एंड दिस विल बेसिकली फोल्ड। ये जो कॉटिलिडन है इसकी एक्सिस पर ही यहाँ पर प्रेजेंट होता है। सो कॉटिलिडन इज प्रेजेंट हियर इन दिस सीड। दिस पार्ट हियर दैट विल बी फॉर्मिंग शूट अपेक्स एंड रूट टिप विल बी समवेयर हियर। तो यहाँ से ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, इधर कॉटिलिडन्स, ये सीधा होगा, लीव्स ऐसे निकलेंगी और रूट नीचे की तरफ चली जाएगी। दिस इज हाउ द प्लांट विल, दिस एम्ब्रियोज विल ग्रो। वी कैन ऑल्सो लुक एट द डिटेल्ड पिक्चर ऑफ द इंटायर थिंग। आप इसकी डिटेल्ड पिक्चर भी देख सकते हैं। दिस इज द लोकेशन हाउ एम्ब्रियो इज एसोसिएटेड। सो दिस इज द बेसल सेल टू विच इट वॉज अटैच्ड एंड दिस इज सस्पेंसर, ये सस्पेंसर है जिससे एम्ब्रियो अटैच्ड है। एंड फाइनली यू हैव अ कॉटिलिडन, यहाँ पर आप कॉटिलिडन देख सकते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ कॉटिलिडन। सो रेस्ट ऑफ द पार्ट इज द पार्ट ऑफ ओव्यूल, बाकी जो है ओव्यूल का पार्ट है। नाउ इफ यू अगेन लुक एट दिस डायग्राम, वी हैव, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी सीन दिस डायग्राम इन वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोज। This is the representation of basic differences or distinctions in the seed, but our idea is to look at the differences in embryo. So by now we have already learned, अब तक हमने ये देख लिया कि जो मोनोकॉट और डाइकॉट हैं इनके एम्ब्रियो की लोकेशन में भी डिफरेंस होता है, सीड के अंदर ये कहाँ प्रेजेंट है, इनकी एक्सिस कैसी है, इनके शेप में भी डिफरेंस होता है और ऑफ कोर्स इनके कॉटिलिडन्स के नंबर में तो डिफरेंस होता ही है। अब कुछ और डिफरेंसेस देखते हैं which might also help you to identify these embryos if they are in isolation. अगर कोई आपको ये एम्ब्रियोज अलग से दे दे तो आपको पहचान में आ जाएंगे। कैसे आप पहचानेंगे इनको, डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? लेट्स हैव अ लुक एट दैट। सो इफ यू लुक एट द प्लूम्यूल, प्लूम्यूल इज समथिंग दैट विल मेक अ फ्यूचर स्टेम बनाएगा। सो इट अकर्स लेटरली इन द मोनोकॉट स्टेम। ये मोनोकॉट में कहाँ होता है? लेटरली होता है, जबकि डाइकॉट में डिस्टली होता है। डिस्टली मतलब डाइकॉट में दूर होता है और मोनोकॉट में ये साइड में होता है। प्लूम्यूल का जो एनवलप है मोनोकॉट एम्ब्रियो में, दिस इज प्रेजेंट इन द टॉप विच इज कॉल्ड एज कोलियोप्टाइल। प्लूम्यूल का जो एनवलप है उसे कोलियोप्टाइल कहते हैं। डाइकॉट प्लूम्यूल डजंट हैव एन एनवलप। डाइकॉट्स में प्लूम्यूल के ऊपर कोई कवर नहीं होता है, प्लूम्यूल के ऊपर जो है कोई कोटिंग नहीं होती है। ऐसे ही कोलियोराइजा जो है, कोलियोराइजा इज द प्रोटेक्टिव शीथ ऑफ मोनोकॉट रेडिकल। मोनोकॉट का जो रेडिकल है, जो फ्यूचर रूट बनेगी, उसके ऊपर भी एक कवरिंग होती है, जस्ट लाइक दे हैव कवरिंग ओवर द शूट। जो रूट के ऊपर कवरिंग होती है उसे कोलियोराइजा कहते हैं। डाइकॉट में ऐसा कोई कवरिंग नहीं होती है, उसमें सीधे सीड के ऊपर प्रिमिटिव रूट और प्रिमिटिव शूट प्रेजेंट होते हैं। देन टॉकिंग अबाउट लीव्स, मोनोकॉट एम्ब्रियो, इनके जो कॉटिलिडन होते हैं वो ट्रू लीव्स की तरह रिजेंबल करते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मोनोकॉट से जब लीव्स निकलेंगी, जब उनके कॉटिलिडन बड़े होना शुरू होंगे तो उन प्लांट्स की ओरिजिनल लीव्स की तरह होंगे। लेकिन डाइकॉट में जो पहली लीव्स निकलती हैं वो कॉटिलिडन ही होते हैं और वो कॉटिलिडन अपनी मैच्योर लीव की तरह रिजेंबल नहीं भी कर सकते हैं, वो उससे अलग होते हैं। तभी तो सारे डाइकॉट की लीव्स एक जैसी निकलती हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो अलग टाइप के हैं। So you can also look at a germinating embryo, and if you see always same kind of leaves coming out, you can say it is most likely a dicot. Whereas if the leaves are like adult plant already,
then it is most likely be a monocot plant. So this was all about the basic differences between embryo of monocot and dicot. I hope you are now clear about these. Let us summarize quickly. हम जल्दी से इन सारी चीज़ों को summarize करते हैं. We started looking at the basic difference between dicot and monocot. सबसे पहले हमने बात की थी कि एम्ब्रियो क्या होता है. एम्ब्रियो ओव्यूल के अंदर एक वो स्ट्रक्चर है जो आगे चलकर प्लांट बनाता है. ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो डेवलप होता है और उसके प्रोटेक्शन के लिए चारों तरफ जो ओव्यूल के पार्ट्स हैं दे मैच्योर इनटू सीड, बट दैट एम्ब्रियो इटसेल्फ develops into a structure which contain different subdivisions or parts like radicle, which is forming root, which will be forming possible roots in future, plumule that will be forming possible stem, and cotyledons. So we looked at the differences, individual differences between monocot and dicot. We talked about all the differences, about their cotyledons, the nature of cotyledons, what happens when they germinate, how they differ from each other on germination, and we also looked at the location or position of radicle and plumule inside an embryo. It is lateral in case of monocots, it is distal in case of dicots, and we also looked at the phenomena that there is a covering over primitive root, that means radicle and plumule in monocots, but there is no coating over the plumule and radicle of dicots. So that was all in this video. I hope you enjoyed learning from this video. In case you want to learn more about this topic, you may refer to these books from S. Chand Publishing. And if you are not having hard copy of these books, you can go below in the description box and find link for ebooks. So if you are liking and enjoying these videos, you may like, share and subscribe this channel. And you may also wish to press bell icon if you want regular updates. Thanks for watching. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.